नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माउथ कैविटी. ठीक है, अब हमने स्कल पढ़ लिया था. स्कल में हमने क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन डिस्कस किया था. अब हेड रीजन में क्या बचा हुआ है? अब हम जाते हैं आई, ईयर, ओरल कैविटी. इन द ओरल कैविटी टंग, टीथ, हार्ड पैलेट, फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी. सो वी हैव टू डिस्कस दीज स्ट्रक्चर वन बाय वन, राइट? जब हम ये सारा हो जब पढ़ लेंगे देन हेड विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, तो आपका जो यूनिट वाइज जो चल रहा है डिस्कशन वो कंप्लीट हो जाएगा. तो हेड में आज हम स्टार्ट करेंगे टंग. So the slide is visible to all? Yes, ma'am. Okay. देखिए, the oral cavity, formation of oral cavity was discussed, right? जब मैं आप लोगों को फेशियल बोन्स पढ़ा रही थी तब मैंने फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, ओरल कैविटी डिस्कस किया था. The roof of the oral cavity is formed by the premaxilla, palatine process of maxilla. याद आ रहा है? And palatine bone. कोशिश करो कुछ याद करने की. जब स्कल हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था the roof is formed by the premaxilla, palatine process of maxilla and palatine bone. ठीक है, ये क्या? these are forming the roof of the mouth cavity. And in roof of the mouth cavity ये bony हो गया, और otherwise we can say hard palate is forming the roof of the mouth cavity. ठीक है, and floor of the mouth cavity mainly the mandible and mylohyoideus muscle. ठीक है, mandible होता है ना, mandible is forming the floor of the mouth cavity and the gap is filled by the mylohyoideus muscle. ये बताया हुआ है मैंने. ठीक, now the gap on the lateral side, the mouth cavity is connected by the cheek. ठीक है ना, because these are the bony structures, roof and floor, and they are completed in a fresh condition. If we see the mouth cavity in fresh condition, then we see the cheek and lips, they are making the complete boundary of mouth cavity. So the roof, floor, lateral wall, anterior boundary of the mouth cavity and posterior boundary of mouth cavity. So thus it is forming like this. हम पढ़ेंगे माउथ कैविटी का भी अभी डिस्क्रिप्शन और पढ़ेंगे. उससे पहले हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन माउथ कैविटी. तो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन माउथ कैविटी में क्या क्या मिलेगा हमको? टंग मिलेगा, टीथ होगा. ठीक है ना, टंग, टीथ. देन वी विल डिस्कस सेपरेटली द हार्ड पैलेट. वी विल डिस्कस द सेपरेटली विद द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टंग. टंग ऑफ ऑक्स. टंग कैसा है? whether tongue is having any bone? No, tongue is bone. It is a musculo-membranous structure. It is a musculo-membranous structure. Means bulk of the tongue is formed by the muscle and it is covered by the membrane. ठीक है, so the bulk is formed by muscles and the muscles are called intrinsic muscles. ठीक है ना, they are the intrinsic muscles. क्यों intrinsic muscles? क्यों? क्योंकि ये they are starting from the tongue and ending at the one part of the tongue. ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इंट्रेंस, इसका भी पढ़ेंगे. मस्कुलेचर ऑफ द टंग लेटर ऑन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें. ठीक, तो द फंक्शन ऑफ द टंग इज प्रीहेंशन. व्हाट डज मीन बाय प्रीहेंशन? हाँ,
Taking food. Catching the food, yes. Prehension means catching the food. In case of ruminant, bovine, the tongue is very important part of prehension. आप लोगों ने देखा होगा गाय बड़ी सी जीभ निकाल के बाहर और भूसे को अंदर लेती है ना? तो tongue is very important part of prehension in case of domestic animals. ह्यूमन में तो ऐसा नहीं है, हम तो हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें बहुत टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. देन mastication and deglutition तो सभी में ही है. It will help in mastication and help in deglutition. So this is common for all. Now, tongue is situated on the floor of the mouth between the two rami of lower jaw. याद करो mandible पढ़ा था ना? Mandible is comprised of two horizontal part and vertical part. ठीक है ना? तो rami word actually दोनों के लिए यूज कर देते हैं. कई जगह आप देखोगे horizontal rami and vertical rami इस तरीके से यूज करते हैं. हमने कैसा पढ़ा था? हमने पढ़ा था body एंड रेमस पढ़ा था. रेमाई का वर्ड यहाँ पर रेमाई प्लूरल हो गया ना, टू रेमाई. तो दे आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द मैंडिबल. ठीक है ना? तो टंग इज सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ बिटवीन द टू पार्ट एंड बॉडी ऑफ द मैंडिबल. यू कैन से लाइक दिस, बिटवीन द टू रेमाई ऑफ लोअर जॉ. देन द टंग हैज रूट, बॉडी एंड एपेक्स. टंग कंप्राइज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, root, body and apex. So one by one we will discuss. In generally if we see tongue, how the tongue is formed. So we have seen that tongue is formed by the intrinsic muscles and then mucosa. What is mucosa? It is the covering. एपिथीलियम मतलब म्यूकोसा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एपिथीलियम बोल सकते हैं. मसल के ऊपर जो कवरिंग होगा ऊपर से चारों तरफ से और नीचे से, that is the mucosa. Then tongue has some innervation, it has some blood supply. ठीक है? तो ये टोटल कंटेंट हो गया टंग का कि what the tongue has. The tongue has main bulk is formed by the muscles and the muscles are covered by the mucosa. It has innervation by nerves and blood supply also. ठीक है? अब मुझे ये बताइए किस टाइप की एपिथेलियम मिलेगी टंग में? ओरल कैविटी हाँ नॉन स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड. स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड आप बोल रहे हैं ना? और कोई बोलेगा? और कोई? हम टंग ऑफ द ऑक्स की बात कर रहे हैं. और कोई बताएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द टंग ऑफ ऑक्स. मैम हार्ड होती है टच करने पे केराटिनाइज्ड. क्या क्या? मैम टच करने पे तो हार्ड होती है. हाँ, टच करने पर हार्ड होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो किस टाइप की एपिथेलियम हो सकती है? केराटिनाइज्ड होना चाहिए. केराटिनाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही. यस, द एपिथेलियम. ये बात गांठ बांध के आज याद कर लो. इन केस ऑफ ऑक्स, ऑक्स मतलब जितनी भी हम रूमिनेंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू द लेवल ऑफ ओमेजम, the lining epithelium is stratified keratinized squamous epithelium. Keratinized stratified मिलेगी यहाँ पर. Keratinized याद रखो, हाईलाइट करो keratinized को. मतलब ओरल कैविटी से लेकर के ओमेजम तक लाइनिंग एक जैसी चल रही है. Keratinized stratified squamous epithelium. समझ में आ रहा है? जबकि डॉग में ऐसा नहीं मिलेगा, पिग में ऐसा नहीं मिलेगा, हॉर्स में ऐसा नहीं होगा. लेकिन in these animals, in ruminants, the lining epithelium from oral cavity to the level of omasum, it is keratinized. Now you assume how it is the epithelium जो हमारी skin का है, skin is keratinized. That is present in omasum of these animals. मतलब उनके stomach, rumen, reticulum, omasum, तीनों compartment में keratinized squamous epithelium मिलेगा. ठीक है ना? Because of their food, they are eating just coarse food. जो भूसा खा रहे हैं एनिमल वो बहुत ही कोर्स है. तो that is why this type of epithelium is provided to these animal. ठीक है? बिल्कुल सही. केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम रहेगी किसमें? ऑक्स. हाँ. So mucosa of dorsal surface of tongue present number of various papillae. ठीक है?
actually the mucosa present on dorsal surface is also termed as dorsum linguae. टंग को हम क्या बोल सकते हैं? लिंगुआ, लिंगुए टर्म यूज होता है ना, ठीक है ना. तो डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग इज आल्सो नोन एज डॉर्सम लिंगुए. क्योंकि कई बार क्या आता है ऐसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते, डिस्क्राइब द डॉर्सम लिंगुए ऑफ द टंग. डॉर्सम मतलब केवल डॉर्सल सरफेस के बारे में पूछा है, वेंट्रल सरफेस के बारे में टंग में या लेटरल सरफेस के बारे में नहीं पूछा है, ठीक है ना. बेसिकली द टंग इज कंप्राइज ऑफ 2 लेटरल सरफेसेस होंगी, एक डॉर्सल सरफेस होगा और एक वेंट्रल सरफेस होगा, ठीक है ना. तो कितने टाइप की सरफेस हो गई? टाइप की बात करेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ सरफेसेस, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल. लेकिन टोटल सरफेसेस की बात करेंगे तो 4 होंगी. 4 सरफेसेस कौन कौन सी? टोटल सरफेस की बात करेंगे तो 4 कौन कौन सी 4 होंगे? दे विल बी डोर्सल, वेंट्रल, हाँ. राइट एंड लेफ्ट लेटरल. बिल्कुल सही, राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि लेटरल 2 हो गई ना, तो 2 लेटरल, 1 डॉर्सल एंड 1 वेंट्रल, सो टोटल विल बी 4, राइट. So these are the surfaces of the tongue. Now we will discuss one by one. First we will discuss the dorsal surface or dorsum linguae of the tongue. So before going to papillae present in the dorsal surface, first we see how the tongue appear and how the different terminology is applied for this. ठीक है ना. अभी मैंने बताया था tongue is which is posterior part of the tongue. root किससे connected होता है? hyoid bone से connected रहता है, सबको पता है ना. Tongue is connected with the hyoid bone. So क्या बात है, कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? अंकित, are you listening me? अंकित? यस मैम. हाँ अंकित, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है बेटा? अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप? मैम अभी वो मिस हो गया था, अभी वो काम से लगे थे मैम, इसलिए फिर अभी आया. चलिए ठीक है, अपने फ्रेंड से ले लेना जो मैटर मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना. और हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है. टंग हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है. और पेपिले जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, ये तो मतलब मल्टीपल चॉइस में मिलना ही मिलना है इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है. हाँ, so root, this is whole is the body and this is the apex portion, ठीक है ना. apex मतलब pointed anterior part of the tongue, ठीक. अब हमारी टंग आप देखते हो, हमारी टंग कैसा है? टोटल फ्लैट है हमारी टंग, एक जैसा है. ऐसा नहीं है कि कहीं उठा है, कहीं डिप्रेशन है. बट in case of ox, here you see this is the tongue of ox, this is the apex of the tongue. और यहाँ आप ध्यान से देखो कि ये this part is raised, पीछे वाला पार्ट है टंग का, ये कैसा हुआ है? उठा हुआ है. this part is raised, that is why it is known as torus linguae. what it is termed? torus linguae. याद करो, टोरस टर्म पढ़ा था ना, टोरस टर्म ऑस्टियोलॉजी में टर्म पढ़ा था. टोरस पढ़ा था कि नहीं ऑस्टियोलॉजी में? टोरस टर्म यस मैम. पढ़ा था. चट्टान ऐसे जगह. फ्रंटल. हाँ, उसका मतलब देखें, कुछ रेज्ड एरिया. टोरस मतलब उठा हुआ एरिया, कोई चट्टान, ठीक है ना. तो टोरस टर्म हमको कई जगह मिलेगा यहाँ ऑर्गन्स में. यहाँ पर इसको हमने क्या बोला हुआ है? torus linguae. This is called torus linguae, and just anterior to torus linguae there is a depression called lingual fossa. ये lingual fossa, this is what lingual fossa. क्यों? क्योंकि ये चीज कैसा है? हाँ हाँ बोलो. कर्सर नहीं दिख रहा है. क्या? कर्सर नहीं दिख रहा है. कर्सर नहीं दिख रहा है? देखो, अब दिख रहा है क्या? नो मैम. कर्सर दिख ही नहीं रहा है. दिखना तो चाहिए कर्सर, क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं भी कर्सर नहीं दिख रहा है? मैम अब दिख रहा है क्या? यस मैम. यस मैम. अब दिख रहा है? हाँ,
अब बताइए, दिख रहा है? अभी दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। हाँ चलिए फिर अब देखिए फिर ये देखिए, तो दिस एरो, जो ब्लैक एरो हेड दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ब्लैक एरो हेड, so here you see that this depression is called lingual fossa. क्यों बना depression? Because this surface is flat and afterward there is elevation is there. तो elevation और यहाँ depressed area के बीच में एक groove type बनेगा, ठीक है ना? So that is why it is called lingual fossa. So apex of the tongue is blunt over here. Then there is presence of lingual fossa. This is called torus linguae. Elevated posterior part of the tongue is called torus linguae. ठीक है, इतना समझ में आया? ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? We are discussing about dorsum linguae of the tongue. So dorsum linguae में भी हमने बताया there is presence of initially it is flat, 2/3 part is flat and 1/3 part, posterior part, here is presence of elevated portion that is called torus linguae. ठीक. Now various type of papillae are present over the tongue. आप लोगों ने सभी ने नाम सुना हुआ है, अलग अलग टाइप के पेपिले का नाम सुना हुआ है, ठीक है? पिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट, फोलिएट, ऑक्स में नहीं मिलेंगे फोलिएट, ठीक है ना, लेकिन फोलिएट होते हैं अदर स्पीसीज में, ठीक है? सो हियर द पेपिले व्हिच आर प्रेजेंट इज फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवेलेट एंड कोनिकल पेपिले, कोनिकल और लेंटिकुलर पेपिले. वन बाय वन मैं आपको ये सारे बताती हूँ. पहले आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखो, फिलीफॉर्म पेपिले. फिलीफॉर्म पेपिले दे आर मोस्ट न्यूमरस पेपिले. मतलब अगर टंग में नंबर की बात की जाए, स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा नंबर में जो पेपिले होंगे दे आर द फिलीफॉर्म पेपिले. दे आर प्रेजेंट इन द एपिकल हाफ ऑफ द टंग anterior to torus linguae. ठीक है? They are not present in the entire tongue. They are present anterior to torus linguae. They are thread-like, posteriorly directed, and highly cornified. Highly cornified, especially at the apex, so that they make the surface of tongue rough. कभी किसी ने टंग को फील किया है? कभी ऐसे हाथ से टच किया है टंग? हुई है टच किसी के? यस मैम. भाई काऊ को गुड़ चटाया हो, या आप निकल रहे हो और गाय ने जीभ मार दी हो आपके हाथ पे, है ना? गायों की आदत होती है ना चाटने की, बछड़ों की आदत होती है चाटने की. तो टंग से अगर उन्होंने कोशिश किया हो, मतलब वो जो जिनके यहाँ होगी गाय, उन्हीं को फील हुआ होगा ये. तो मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर टंग को आप फील करेंगे, then it has the feeling like sand paper. जैसे सैंड पेपर होता है ना, रफ, इतना दरदरा, इतनी दरदरी फीलिंग होगी किसमें? इन केस ऑफ टंग ऑफ ऑक्स. एंड इट इज बिकॉज ऑफ फिलीफॉर्म पेपिले. इट इज बिकॉज ऑफ फिलीफॉर्म पेपिले. फिलीफॉर्म पेपिले दे आर हाईली कॉर्निफाइड. कॉर्निफाइड मतलब जैसे किसी भी चीज में काफी रफनेस आ जाए, ठीक है ना? कॉर्निफाइड का मतलब ये भी है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो थिकनेस है दैट इज मेनी फोल्ड हायर, ये भी एक रीजन है, ठीक है? So filiform papillae are highly conified, especially at the apex. That is why it is making the surface of tongue rough. Filiform papillae are mechanical papillae. They are not having the taste buds, right? They are not having the taste buds. ठीक? Now next is the fungiform papillae. Fungiform papillae नाम कैसे आया? Fungi मतलब फंगस, ठीक है? फंगस, because they are resemble to the head of fungi. That is why they are called as fungiform papillae. फंगस की कहीं ग्रोथ होती है तो जो पिन पॉइंट हेड टाइप के डेवलप होते हैं, डॉट टाइप, so that is because of that the name is derived, fungiform. So fungiform are larger than the filiform and they have taste buds and they are distributed to the entire dorsal surface and lateral surface of tongue. फंजीफॉर्म मिले, फिलीफॉर्म अभी मैंने क्या बताया? फिलीफॉर्म कहाँ मिलेंगे? एंटीरियर टू टोरस लिंगुए, मतलब पूरी टंग में नहीं मिलेंगे. दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन एंटायर टंग. फिलीफॉर्म पेपिले आर नॉट प्रेजेंट ऑन द एंटायर टंग.
they are distributed anterior to torus linguae. However, fungiform are distributed to the entire dorsal surface as well as in the lateral surface, right? And they are having the taste buds. Now the circumvallate or vallate papillae. Third papillae, circumvallate को नाम कैसे पढ़ा? Circumvallate. Actually, these papillae are larger in size. सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? Circumvallate papillae की होगी. They are largest in size. And actually they are circumscribed by a wall. Each papilla is circumscribed by a wall. मतलब एक सर्किल ड्रॉ करो, अगर आप एक छोटा सर्किल ड्रॉ करो, फिर उसके चारों तरफ एक और उसके ऊपर मार्जिन बनाओ, बाउंड्री बनाओ उस सर्किल के चारों तरफ, ठीक है? तो जो बाउंड्री बनाओगे that is the wall that is circumscribing that papillae. ठीक, तो ये मैं आपको पहले दिखा दूं तो आपको थोड़ा समझ में आने लगेगा. Here you see that circumvallate papillae मैंने बताया अभी सबसे बड़े papillae हैं. ये देखो आप, ये कर्सर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जहां मैं कर्सर ले जा रही हूँ? यस मैम, दिख रहा है ना? ये देखो, ये गोल गोल दिख रहे हैं ना, गोल गोल स्ट्रक्चर, ये गोल गोल डॉट दिख रहे हैं ना, ये एरो में मत देख जाइए, पहले मेरे इसको देखिए जो मैं दिखा रही हूँ आपको. ये बड़े बड़े गोल गोल स्ट्रक्चर. फिर इसका जो है एनलार्ज व्यू यहाँ देखिए, ये बड़ा दिख रहा है, उसके चारों तरफ एक गड्ढा है, दिख रहा है? यस मैम. दिख रहा है? तो ये क्या है? These are the circumvallate papillae and the number of circumvallate papillae 8 to 17, मतलब 8 से लेके 17 तक हो सकते हैं on either side of posterior part of the tongue. देखो ये क्या है? ये torus linguae है, ये टंग का क्या है? posterior part है. तो इस तरफ भी मिलेगा और इस तरफ भी मिलेगा. On either side of posterior part of the tongue, the circumvallate papillae are present arranged in the form of irregular 2 rows. 2 लाइन में मिलेंगी, लेकिन लाइन सीधी सीधी लाइन नहीं होगी. लाइन कैसी होगी? irregular होगी, ठीक है ना? So circumvallate papillae are arranged in the form of irregular 2 rows in the posterior part of tongue, and the number varies 8 to 17 on either side. समझ में आया? Circumvallate papillae have the taste buds. Circumvallate papillae, they have the taste buds. They are the sensory papillae. They are the sensory papillae. ठीक है? अब फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म की बात हो रही थी, तो ये देखो, जो आपको ये डॉट दिख रहा है ना, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहे हैं? थोड़े बड़े से दाने दिख रहे हैं, ये अलग से दाने, अलग से सफेद कलर के दाने दिख रहे हैं. They are the fungiform. They are the fungiform. और filiform कैसे होते हैं? They are thread-like. मतलब in between the filiform there is distribution of fungiform. Fungiform का साइज बड़ा है, ये fungiform है. ये कौन से हैं? जैसे बोलते हैं ना कि सफेद दाग, छोटे छोटे स्पॉट. So likewise these are the fungiform papillae. और बाकी ये जो रेसे टाइप के दिख रहे हैं आपको, थ्रेड के जैसे रेसे जैसे दिख रहे हैं, they are the filiform papillae. तो फिलीफॉर्म हो गया, फंजीफॉर्म देख लिया आपने, सर्कमवैलेट देख लिया आपने, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज कॉनिकल एंड लेंटिकुलर पेपिllae. Conical and lenticular papillae. Conical and lenticular papillae, they are present over the torus linguae. They are present over the torus linguae. इसी का देखिए ये एनलार्ज व्यू है इसका, ठीक है? तो यहाँ आप ध्यान से देखो तो काफी दरदरा और बड़े बड़े, या ये देखो, यहाँ पर देखो, ये एरिया देखो. कॉनिकल क्यों बोला हुआ है? जैसे ब्रिसल्स होते हैं ना, ब्रश में जैसे ब्रिसल्स होते हैं, तिकोने तिकोने, ठीक है ना, छोटे छोटे जो ब्रिसल्स होते हैं. लाइक वाइज कॉनिकल पेपिllae, कॉनिकल क्यों? शेप इज कॉनिकल. सो द कॉनिकल पेपिllae, दे आर प्रेजेंट ओवर द टोरस लिंगुए, ठीक है? फिर इन बिटवीन दीज कॉनिकल पेपिllae देयर इज अ फ्लैट और सेसाइल. फ्लैट मतलब चपटे मिलेंगे, कुछ चपटे पेपिllae मिलेंगे. दे आर कॉल्ड लेंटिकुलर पेपिllae, ठीक है ना? दे आर कॉल्ड लेंटिकुलर पेपिllae. Some papillae, among these conical papillae, there are some flat papillae which are called lenticular. So conical and lenticular papillae, they are mechanical. They are not having taste buds. समझ में आ रहा है?
कॉनिकल और लेंटिकुलर कहाँ मिलेगा? टोरस लिंग्वे के ऊपर मिलेगा। इसमें कुछ तो होंगे कॉनिकल जो कि उठे हुए दिखेंगे, ऐसे ब्रिशल्स की तरह दिखाई देंगे, और कुछ जो होंगे वो जो होंगे राउंड और चपटे होंगे, ठीक है। तो जो चपटे होंगे दे आर कॉल्ड लेंटिकुलर एंड conical are called conical, ठीक है। so they are not having taste buds, they are mechanical papillae, right? तो आपने देखा filiform, fungiform, circumvallate, then conical and lenticular, ठीक है। of papillae over the tongue. circumvallate के बारे में अभी मैंने बताया, conical और lenticular present over the torus linguae and its anterior part there are some conical papillae which are not have taste buds. Some of these are flattened or sessile known as lenticular papillae. मैंने अभी बताया था, कुछ इसमें से फ्लैट रहेंगे, they will be termed as lenticular papillae. So these four type of papillae are present over the dorsum linguae और lateral surface में भी मिलेगा fungiform, ठीक है ना। So these four type of papillae will be present in case of ox, ठीक है। अब इसके बाद if we talk about the musculature of the tongue, so the musculature is formed by the intrinsic fibers and these are directed longitudinally, transversely as well as vertical भी है। तीन टाइप से अरेंजमेंट है, 3 types of arrangement is there, longitudinal, transverse and vertical, ठीक। तो they are arranged like this, मतलब लंबाई में भी फाइबर्स होंगे, कुछ फाइबर्स जो होंगे वो किस में होंगे? ट्रांसवर्सली डायरेक्टेड होंगे, कुछ वर्टिकल डायरेक्टेड होंगे। तो these are the intrinsic muscle, ठीक है। ये schematic डायग्राम है टंग का, गोश में बना होगा, उसमें दिखाया हुआ है वेलेट पेपिले, लेंटिकुलर, कॉनिकल, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ये लिंगुअल फोसा, दिस इज लिंगुअल फोसा या ट्रांसवर्स ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, एंड दिस इज टोरस लिंग्वे, ठीक है। तो इतना आज हमने पढ़ा। अब इसमें से थोड़ा सा काफी स्पीडली पढ़ लिया है, अभी पहले इसमें से हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। अभी ऑक्स का टंग कंप्लीट नहीं हुआ है। द टंग ऑफ ऑक्स इज, ये तो वही इंट्रिंसिक मसल्स की बात हुई ना, ठीक है ना। द टंग इज कनेक्टेड विद द 3 extrinsic muscles with other parts of structure like, and the muscles is styloglossus, hyoglossus and genioglossus. styloglossus किससे कनेक्ट होगा? hyoid bone से। genioglossus to the mandible and hyoglossus is also to the hyoid bone, ठीक है। तो 3 extrinsic muscles they are connecting the tongue with the skeleton, ठीक है। कौन कौन सी है? hyoglossus, genioglossus, Genio, genioglossus and styloglossus. These are the 3 muscles which connect the tongue with the adjacent skeleton, ठीक है ना, the root. Then the ventral surface of the tongue is not entirely free. जैसे हमने देखा अभी dorsal surface of tongue is free, ये parietal free है। But if we see the ventral surface of the tongue, then only anterior part of the tongue is free and the posterior part is fixed. पीछे वाला पार्ट कैसा है? फिक्स्ड है। अपनी टंग में भी अगर आप देखोगे तो आगे से तो टंग फ्री है, पीछे से टंग कैसा है? फिक्स है। अगर हम नीचे साइड से वेंट्रल सरफेस से देखेंगे तो, ठीक है। देन वन fold of mucous membrane connect the ventral surface of the tongue with the floor of mouth, and that fold of mucous membrane is called frenum linguae. सुना है इसका नाम? फ्रेनम लिंग्वे सुना है? यस मैम। है ना, पहले भी सुना होगा फ्रेनम लिंग्वे। Yes, ma'am. Frenum linguae is the fold of mucous membrane which connect the ventral surface of the tongue with the floor of mouth. With the floor of mouth, right? So the ventral surface की जब चर्चा करेंगे तो हमें ये सब बोलना पड़ेगा, ठीक है। Then after lateral surfaces तो भी बता दिया, lateral surfaces आगे से we see anteriorly the lateral surface is very thin and posteriorly it become broad. Lateral surfaces become broad. यहाँ से पीछे से थोड़ा सा वो broad दिखेंगी surface, lateral surfaces, right?
then the tongue is connected with the soft palate. ठीक है ना? अभी चर्चा करनी है हमको पिलर्स की, एंटीरियर पिलर की चर्चा करनी है, क्योंकि अभी हॉर्स में पढ़ेंगे पेपिले के नाम, फोलिएट पेपिले, तो एक आएगा एंटीरियर पिलर का नाम आएगा, ठीक है? एक्चुअली जैसे आप अपना मुंह खोलेंगे, ठीक है ना, तो मुंह खोलते हैं तो थोड़ा बहुत एनाटमी अब आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब से देख के, क्योंकि अब हम बहुत हेल्पलेस हैं, डिसेक्शन हॉल में दिखा नहीं सकते कुछ, सब वर्क फ्रॉम होम भी है तो लैब में भी नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज वहां से हम कुछ लाइव निकाल के दिखाते हैं आपको। एंटीरियर पिलर और पोस्टीरियर पिलर ये दो टर्म हैं, इसमें से एंटीरियर पिलर इज नोन एज पैलेटोग्लॉसल आर्च, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? पैलेटोग्लॉसल आर्च मींस पैलेटोग्लॉसल आर्च इज आल्सो नोन एज एंटीरियर पिलर, ठीक है? आपको कैसे इमेजिन क्या करना है इसमें, देखो ये देखिए, जैसे ये क्या है, ये टंग है, और टंग दिस इज, ये जो मेरा हाथ पीछे ये आ गया, ये क्या होगा? रूट ऑफ द टंग, दिस इज द रूट ऑफ द टंग, है ना? और ऊपर क्या होगा? पहले क्या आता है? हार्ड पैलेट आएगा, हार्ड पैलेट के बाद क्या आएगा? सॉफ्ट पैलेट। ये रूफ हो गया ना माउथ कैविटी का, ये फ्लोर, फ्लोर पे क्या है? टंग है, और ऊपर क्या है? पहले हार्ड पैलेट है, फिर उसके बाद क्या आ गया? सॉफ्ट पैलेट आ गया, ठीक है? तो सॉफ्ट पैलेट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज कनेक्टेड विद द रूट ऑफ द टंग विद द है ऑन आइदर साइड, मतलब ये जो गैप है दोनों तरफ, कैसे? एक मेम्ब्रेन उठा के, मतलब आप दोनों तरफ से एक कनेक्शन लगा दीजिए, दोनों में, दोनों साइड से। सो द कनेक्शंस बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट and root of the tongue, that will be termed as what? Anterior pillar or palatoglossal arch. समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट करें। अपना मुंह खोलेंगे जब आप अबुला पढ़ते हैं? अबुला सुना है? अबुला का नाम यस मैम। सुना Yes, है ना? ma'am. सुना है? अबुला क्या है? क्या है अबुला? It is a flap-like structure which covers the internal layers. अबुला cover the internal layers. During the deglutition. अबुला तो एक होता है, इंटरनल लेयर्स दो होते हैं। इंटरनल लेयर्स दो होंगे ना? Yes, ma'am. है ना? एक्चुअली इट इज द वेंट्रल एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना? अबुला इज द वेंट्रल एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जो हम अबुला देख रहे हैं ना, वो किसका पार्ट है? वो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है अबुला, ठीक है ना? यहाँ एनिमल्स में अबुला नहीं है, एनिमल्स में अबुला नहीं है, केवल पिग में मिलेगा अबुला, ठीक है? तो दैट वेंट्रल एक्सटेंशन, मतलब आप अगर अपना अबुला देख पा रहे हो, मतलब वो आप किसको देख रहे हो? सॉफ्ट पैलेट को देख पा रहे हो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है? फिर आप अपनी टंग को भी देख पा रहे हो। अब टंग और सॉफ्ट पैलेट के दोनों तरफ ऐसे, राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड, मतलब ऊपर सॉफ्ट पैलेट है, नीचे टंग है, और दोनों को, मतलब दोनों को आप कनेक्ट कर रहे हो कैसे? इधर से और इधर से आपने एक पतला सा, मतलब एक वो चढ़ा दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया किसी मेम्ब्रेन से। बात समझ में आ रही मेरी? बाकी टंग आपका फ्री है, टंग आपका फ्री है ना? टोटल टंग इज फ्री, फ्री इन द सेंस डॉर्सल सरफेस इज टोटल फ्री, ठीक है? ये इसको मैं दिखाऊंगी आप लोग को, फिर नेक्स्ट क्लास में डायग्राम लाऊंगी, यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है? मैं दिखाऊंगी डायग्राम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। मैम जहाँ टॉन्सिलाइटिस हो जाता है वहाँ की बात कर रही है पीछे? बिल्कुल सही है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि एंटीरियर पिलर और पोस्टीरियर पिलर के बीच में जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड टॉन्सिलर फोसा, एंड इन टॉन्सिलर फोसा टॉन्सिल इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है? सही कह रहे हो, मैं इस चीज को समझाऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैं केवल एंटीरियर पिलर पे फोकस करना चाह रही हूँ, ओनली एंटीरियर पिलर। हम बात करेंगे अभी टॉन्सिलर फोसा की बात करेंगे, टॉन्सिल की बात करेंगे, पोस्टीरियर पिलर की भी बात करेंगे, वन बाय वन।
अभी पहले केवल आप एंटीरियर पिलर पे फोकस करिए। एंटीरियर पिलर क्या है, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड एक फोल्ड जाएगा, और वो फोल्ड ऊपर कनेक्ट करेगा किससे कनेक्ट करेगा, सॉफ्ट पैलेट से। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा, यस मैम। है ना। मतलब देखो, इधर से एक फोल्ड जाएगा जो ऊपर तक जाएगा, और यहाँ से एक फोल्ड जाएगा जो ऊपर तक जाएगा, दोनों साइड से, ठीक है ना। तो दैट फोल्ड इज नोन एज एंटीरियर पिलर। समझ में आई मेरी बात। And that is called palatoglossal arch. Palato word for soft palate and glossal word is for tongue. That is called palatoglossal arch or anterior pillar. ठीक है। और एक टर्म और मुझे बताना है आपको, एक अनदर टर्म इज ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड का मतलब क्या है, द रूट ऑफ द टंग, from the root of the tongue, one fold of mucous membrane connected to the epiglottis, that is called glossoepiglottic fold. इसमें किसी में भी नहीं है, इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल दिखाया है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं दिखाया है। ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड इसमें भी नहीं दिखाया है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी 2-4 फोटोग्राफ और सर्च करके आपको दिखाऊंगी, है ना। ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड, एंटीरियर पिलर, पोस्टीरियर पिलर, ये सारी चीजें आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया जितना आज पढ़ा अभी टंग में? यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बताओ। नो मैम। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, इतना अच्छे से समझ में आ गया है। Which one is mechanical, which is having the taste buds, ठीक है। ओके। हाँ, इसमें एक चीज और रह गई, बिफोर स्विच टू द टंग ऑफ हॉर्स। एक चीज और क्या रह गया है कि अभी हमने बात की थी ना, म्यूकोजा, देन मसल्स, देन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अभी अपन म्यूकोजा की चर्चा कर रहे थे, फिर हमने मसल्स की चर्चा की। एक्चुअली अपन ने ग्लैंड्स की चर्चा नहीं कर पाए, ठीक है। ग्लैंड्स, सम ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड beneath the mucosa, ठीक है ना। some glands are present, lingual glands बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, lingual glands। ये तो पेपिले थे सारे, है ना। अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे, किसका, टंग का हिस्टोलॉजी देखेंगे, so there are some small collection beneath the mucosa and muscle, mucosa और muscle के बीच में there is presence of group of alveoli, that is called lingual glands, that is called lingual glands, whose open over the mucosa by numerous openings. समझ में आ रही मेरी बात। टंग हमारी मॉइस्ट रहती है ना, गीली रहती है टंग, ठीक है। उसके गीले रहने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन आ रहा है, बक्कल ग्लैंड्स भी हैं उससे भी सिक्रीशन आ रहा है। टंग में भी खुद में अपने पास लेबियल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड्स हैं, टंग की खुद की भी ग्लैंड है, which are secreting some fluid to keep the surface of the tongue moist. बात समझ में आ रही? And the glands are called lingual glands. Beneath the mucosa and between the muscles, there are presence of glands called lingual glands. Now, some lingual glands open over the taste buds. कहाँ open होगी? जैसे जो glands किसके नीचे फंसेंगी? Circumvallate papillae के नीचे फंसेगी, ठीक है ना? The glands which open, whose opening is on over the taste buds, they are called gustatory glands. They are called gustatory glands. Gustatory glands क्यों? Because they also having the sense of taste. देखो, एक तो हमने पेपिले की बात की, हम फील कर पा रहे हैं किसी चीज का टेस्ट, that is because of fungiform and circumvallate. उसके अलावा there are some gustatory glands. Gustatory glands क्यों? क्योंकि they are connected with the taste buds, मतलब वहां से इनर्वेशन जाएगा कहां पर, एज अ सेंसरी इनर्वेशन, ठीक है। तो सो lingual glands which open over the taste buds, they are called gustatory glands. समझ में आया lingual glands के बारे में? अब इसके बाद आता है नर्व सप्लाई टू द टंग। नर्व सप्लाई कौन बताएगा, टंग को कैसे नर्व सप्लाई, कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो टंग को ब्लड नर्व सप्लाई देगी, कौन बताएगा? ग्लॉसोफेरेंजियल। हाँ बिल्कुल सही, ग्लॉसोफेरेंजियल।
हाँ, और फेसियल। फेशियल, बिल्कुल सही। फेशियल की कौन सी ब्रांच, कुछ बताओ, कुछ नाम बोल देना फेशियल की कोई सी ब्रांच, कोई नाम आता है उसका। बताओ बताओ बताओ। मिक्स्ड। मिक्स्ड है, बिल्कुल सही। ग्लॉसोफेरेंजियल इज मिक्स्ड। चलिए देखो, एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ टंग, जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, तो द ओरिजिन, द एंटीरियर 2/3 part of the tongue and posterior 1/3 part of the tongue develop by different प्राइमोडिया, मतलब अलग अलग चीजों से डेवलपमेंट हुआ है। पीछे का 1/3 पार्ट होगा टंग का, वो अलग प्राइमोडिया से बनता है, और आगे का 2/3 पार्ट जो टंग का है वो अलग प्राइमोडिया से बनेगा। So the anterior 2/3 part of the tongue is innervated by chorda tympani branch of facial nerve, right? And posterior 1/3 part of the tongue is innervated by glossopharyngeal nerve. समझ में आया? फेशियल नर्व का कौन सा ब्रांच? कॉर्डा टिम्पेनाई ऑफ फेशियल, ठीक है ना? कॉर्डा टिम्पेनाई ऑफ फेशियल innervate the anterior 2/3 part of the tongue and posterior 2/3 part of tongue is innervated by glossopharyngeal, ठीक है? अच्छा, एक और नर्व का नाम सुना होगा, हाइपोग्लॉसल। यस। सुना है ना? Yes. हाइपोग्लॉसल का नाम सुना है। वो क्या नेचर है उसका? हाइपोग्लॉसल का क्या नेचर है? Mixed type. हाइपोग्लॉसल मिक्स्ड, मोटर। मोटार, yes, hypoglossal is motor, yes, hypoglossal is motor, मतलब if we see innervation in the tongue, it is by the three nerves, chorda tympani of the facial, then here you see that glossopharyngeal, then hypoglossal, ठीक है ना? Hypoglossal is giving motor, ठीक? So this is how there is innervation of the tongue. फिर ब्लड वेसल्स की जब चर्चा करेंगे तो लिंगुअल ब्रांच आएगी, ठीक है? आप पढ़ेंगे जब जो एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे, ठीक है? एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, तो उससे फेशियल और लिंगुअल दो बाइफर्केट होगा, तो लिंगुअल आर्टरी विल सप्लाई टू द ब्लड सप्लाई टू द टंग, ठीक है? तो जब आर्टरी पढ़ेंगे तो आर्टरी पढ़ेंगे तब उसमें टंग का ब्लड सप्लाई पूरा फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हो गया ऑल अबाउट द टंग ऑफ ऑक्स। हमने इसका म्यूकोसा पढ़ लिए, मसल्स पढ़ा, नर्व्स पढ़ा एंड ब्लड वेसल्स भी पढ़ लिए, ठीक? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टंग ऑफ ऑक्स, हॉर्स, डॉग एंड पिग। दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, राइट? नाउ एनी कंफ्यूजन? Then class will be over. किसी को कुछ नहीं पूछना है? तो अब आपके पास घोष की बुक है, आप उसको लीजिए और उससे पढ़ो, है ना? टंग इम्पोर्टेंट पार्ट है, आता ही आता है। पेपिले तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, पेपिले हो गया। अभी कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने हॉर्स का भी पढ़ना है, पोलिएट पोपिले पढ़ने हैं, डॉग का भी पढ़ना है, ठीक है? तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है? चलिए, ओके देन, गुड डे टू ऑल। थैंक यू थैंक यू मैम। ओके ओके बच्चों।